علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات محترم، آج میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں لے کر حاضر ہوں۔ ہر لفظ کو آپ دھیان سے سنیں اور اسے خود بھی عمل میں لائیں اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا کر ثواب کے حقدار بنیں۔ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا نماز سے گہرا تعلق ہے۔ جس طریقے سے نماز ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر الگ الگ انداز میں 1-2 بار نہیں، 5-10 بار نہیں، بہت مرتبہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور عرب کے بعض قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے، آپ نے تلوار نکال لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور، ہمیں کلمہ پڑھنے والوں سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یعنی نماز ادا کرے گا اور زکوٰۃ سے انکار کرے گا، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم، جو آقا کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا تو اسے وہ دینا ہو۔ معلوم ہوا زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے۔ صاحب نصاب کے لیے اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج و عمرہ کر رہے ہیں، لیکن مالدار ہوتے ہوئے زکوٰۃ سے ہم دور ہیں، تو یاد رکھیں ہم جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ زکوٰۃ اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہمیں کرنی ہی ہوگی، بغیر اس کے ہم جنت میں جا نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، تو جو شخص نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ ایسا مسلمان نہیں ہے کہ اس کا عمل اسے فائدہ دے۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز اور دوسری عبادتوں کا قبول ہونا خطرے میں ہے۔ تو جو شخص چاہے کہ اس کی نماز اور دوسری عبادت بھی قابل قبول ہو تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کروڑ پتی ہوں گے، ارب پتی ہو جائیں گے، تبھی ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، گرام میں اگر ہم اس کو چینج کریں تو قریب 612 گرام چاندی، یا اس کی رقم جو آج کے مطابق 52.5 تولہ چاندی، یا ہم یہ کہیں کہ تقریباً 612 گرام چاندی کی قیمت ہمارے ارول ضلع کے مطابق 30,600 اس کی رقم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس
612 ग्राम चांदी हो या 30,600 रुपये हो या इतनी मिकदार में इतनी रकम का उसके पास तिजारत का माल हो, बिजनेस का माल हो, दुकान में हो या मकान में कहीं पर भी हो, तो ऐसे शख्स पर ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ है। इसी तरीके से या तो 7.5 तोला सोना हो, ग्राम में अगर हम इसको बदलें तो तकरीबन 87.5 ग्राम। अगर रकम में हम बदलें तो आज के डेट के मुताबिक, हमारे ज़िला के मुताबिक इसकी रकम होगी, इसकी कीमत होगी 3,85,000 रुपये। तो चाहे सोना मौजूद हो या चांदी मौजूद हो या सोना के मिकदार रकम मौजूद हो या चांदी के मिकदार रकम, यानी कम से कम 30,600 रुपये अगर उसके पास मौजूद हो या चांदी मौजूद हो 612 ग्राम यानी 52.5 तोला चांदी, या इतनी रकम का उसकी दुकान में तिजारत का माल हो, मकान में कहीं भी हो, बिजनेस का माल मौजूद हो, तो ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है। बगैर ज़कात की अदायगी के उसे छुटकारा नहीं है। औरतें ज़ेवरात की बहुत ज़्यादा शौकीन, मगर ज़कात की अदायगी के मामले में बिल्कुल पीछे। अगर उनके पास भी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी रकम मौजूद है, तो उनके ऊपर भी ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ है। अगर वो ज़कात अदा ना करेंगी तो याद रखना चाहिए कि उनके ज़ेवरात या उनके पास जो रकम माल मौजूद है, इसी को सांप बनाकर उनके गले में तौक के तौर पर डाल दिया जाएगा। सांप हमेशा क़यामत के दिन उन्हें डसता रहेगा। अगर वो इससे बचना चाहती है तो उन्हें चाहिए कि अपने ज़ेवरात की, अपने माल की ज़कात अदा करती रहें। अब रही बात यह कि ज़कात की अदायगी से फ़ायदा क्या है, तो ज़कात की अदायगी से दुनियावी फ़ायदा भी है, उखरवी फ़ायदा भी है। दुनियावी फ़ायदा यह है कि अगर हम ज़कात की अदायगी करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माल में इजाफ़ा फरमाता है। चूँकि अल्लाह का इरशाद है यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद को बर्बाद करता है और सदका खैरात ज़कात को बढ़ाता है, माल में तरक्की देता है। जिससे मालूम ये हुआ कि अगर हम सदका खैरात करेंगे, ज़कात की अदायगी करेंगे, हमारे माल में इजाफ़ा होगा। दूसरी बात ये कि हमारा माल बर्बाद होने से, ज़ाय होने से महफूज रहेगा, क्योंकि आका इरशाद फरमाते हैं ज़कात अदा करके अपने माल को किला में महफूज कर लो। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़मीन पर या पानी में, खुश्की में या तरी में माल जो बर्बाद होता है, ज़ाय होता है, वो ज़कात की अदायगी न करने की वजह से होता है। मतलब ये कि अगर हम ज़कात की अदायगी करेंगे तो चाहे ज़मीन के ऊपर हमारा माल हो या पानी में हमारा माल हो, हमारा माल बर्बाद नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा ये कि समाज में जो गंदगी फैली हुई है, मिसाल के तौर पर चोरी, डकैती, लूट मार, छीना छोरी, ये गंदगी दूर हो जाएगी। इसलिए कि जब अमीर लोग गरीबों तक उनका हक पहुंचाते रहेंगे तो लोग चोरी से बाज रहेंगे, डकैती से बाज रहेंगे और इस जैसे गुनाह से दूर रहेंगे। इसी तरीके से जहालत भी समाज से दूर होगी। चूँकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी आला तालीम नहीं हो पाती, इस वजह से कि वो गरीब और कमज़ोर है माली एतबार से। तो अगर उनकी माली मदद की जाएगी ज़कात की रकम के ज़रिया, तो जाहिर बात है कि वो आला तालीम ले सकेंगे,
तो समाज से जहालत दूर होगी। इसी तरीके से जो बेटियां अपने बाप के घरों पर बगैर शादी के बैठी हुई हैं, जो गरीब अपनी बच्ची की शादी को लेकर परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। और गरीब बेटियों की वक्त पर शादियां होंगी तो समाज से ये परेशानी, ये मुसीबत भी दूर होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़कात की अदायगी में कोताही न बरतें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ये नबी आप उनके माल से सदका ज़कात वसूल कीजिए, क्योंकि ऐसा करना उनके माल को और उनके हाल को पाक कर देता है। यानी ज़कात की अदायगी से माल भी पाक और इंसान का हाल भी पाक हो जाता है। ज़कात की गुफ्तगू हो रही थी, आका के सहाबी मौजूद थे, सहाबा किराम की जमात मौजूद थी। एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मालदारों के लिए है, यानी मालदार लोग ज़कात की अदायगी करके नेकियां हासिल करेंगे, मगर हम जैसे लोग ऐसी नेकी कहाँ से हासिल कर पाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबस्सुमुका फी वजह अखीका सदका। हदीस पाक का मफ़हूम यह है मेरे सहाबी, गुर्बत की वजह से परेशान ना हो, मायूस ना हो, उदास ना हो। मालदार लोग माल की ज़कात निकाल करके माल के ज़रिया नेकी हासिल करें। तुम अपने भाई को, चाहे वो इस्लामी भाई हो या सगा भाई हो, कोई भी भाई हो, तुम अपने भाई की तरफ एक बार मुस्कुरा करके अगर देख लोगे तो ये भी नेकी है, ये भी सदका है। तो मालदार लोग माल अदा करके नेकी हासिल करें और तुम जैसे गरीब लोग मुस्कुरा करके नेकी हासिल करें। इसी तरीके से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को दूर कर दे, या कोई शख्स भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोक दे, या कोई शख्स किसी भटके हुए को रास्ता दिखला दे, या कोई शख्स किसी शख्स को पानी की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरी कर दे, तो वो भी नेकी का हकदार है। ऐसा करना भी सदका है। तो इसलिए जो गरीब लोग हैं इस तरह की नेकी करें और इस तरह का सदका करके बेशुमार नेकियां अपने नामे अमाल में जमा करें। बहरहाल मेरे आका ने अमीरों का भी और गरीबों का भी ख्याल रखा। अब रही बात ये कि अगर ज़कात की अदायगी न की जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, उसे भी समाप्त करते चले। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुनियावी नुकसान भी है, उखरवी नुकसान भी है। आप याद रखें, जो शख्स साहब निसाब होते हुए, मालदार होते हुए अगर ज़कात की अदायगी ना करे तो उसका माल कभी भी बर्बाद हो सकता है, कभी भी उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, कभी भी उसे लॉस हो सकता है। आप गौर करके देखें, कारून जो बहुत बड़ा बादशाह था, अमीर रईस बादशाह, उसको और उसके माल को ज़मीन में धंसा दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसने अपने माल की ज़कात अदा नहीं की थी। वो भी धंसाया गया और उसका सारा माल भी धंसा दिया गया ज़कात की अदायगी न करने की वजह से। तो इस तरीके से दुनियावी नुकसान होता है, दुनियावी नुकसान होता है। उखरवी नुकसान आप देखें, उससे पहले एक और आप फ़ायदा समाप्त करते चले। एक नसरानी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हदीस पाक बयान की कि ज़कात की अदायगी करके अपने माल की हिफाजत करो, तो इस हदीस पाक को हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु एक मजलिस में बयान कर रहे थे। एक ईसाई शख्स, एक क्रिश्चियन शख्स इस हदीस पाक को सुन रहा था। वो अपने घर गया और उसने ये इरादा किया कि मैं अपने माल की ज़कात निकालता हूँ, अगर मेरा माल जो मेरे साथी लोग लेकर के मिस्र गए हुए हैं तिजारत की गरज से, अगर मेरा माल सेफ रहा, महफूज रहा ज़कात की अदायगी करने के बाद, तो मैं
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेते आऊँगा, और अगर मेरा माल महफूज ना रहा, बर्बाद हुआ, इसका मतलब कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, माज़अल्लाह मैं उनको कत्ल कर दूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह। बहरकैफ उसने ज़कात की अदायगी कर दी। उसके बाद मिस्र से उसके साथी का ख़त आया कि माल लूट लिया गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब ये आपे से बाहर हुआ, गुस्से में आया, तलवार उसने निकाली और घर से निकला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से। अभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा नहीं था कि दूसरे साथी ने ख़त लिखा, और ख़त में ये बात थी कि हमारा माल भी महफूज है, हमारी जान भी महफूज है, हम भी महफूज हैं और हमारा माल भी, यानी तुमने जो माल दिया था तिजारत के लिए, तुम्हारा माल भी सेफ है, महफूज है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी सच्चे, आपका दीन भी सच्चा, आपका इस्लाम सच्चा, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ईसाइयत को छोड़ रहा हूँ, सारे रिश्ते को तोड़ रहा हूँ, और आज के बाद मैं आपके हाथों पर तौबा करके हमेशा के लिए कल मैं शहादत पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मैं दाखिल इस्लाम हो रहा हूँ, और वो दाखिल इस्लाम हो भी। मालूम ये हुआ कि ज़कात की अदायगी से माल भी महफूज, जान भी महफूज रहती है। और अगर ज़कात की अदायगी न की गई तो एक भयानक नुकसान समाप्त करते चले। एक वाक़या हमने पढ़ा, नुज़हतुल मजालिस एक किताब है, उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचाज़ाद भाई हैं, उन्होंने फरमाया कि एक अमीर इंसान का इंतकाल हुआ, लोग दफना करके नहला करके उसकी जब कब्र खोदने लगे तो अभी कब्र कंप्लीट ना हुई थी कि बड़ा मोटा असदहा निकला। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये बात रखी गई, आपने कहा दूसरी कब्र खोदी जाए, दूसरी कब्र खोदी गई, फिर वही असदहा निकला, तीसरी कब्र खोदी गई, इस तरीके से 7 कब्र खोदी गई, 7 कब्र में असदहा निकलता रहा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उसके घर वालों से पूछा, ये इंसान कैसा था? लोगों ने कहा कि ये इंसान अच्छा था, नेक था, लेकिन एक कमी थी कि ये अपने माल की ज़कात नहीं निकालता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास समझ गए कि असल में मामला यही है कि वही माल जिसकी ये ज़कात नहीं निकालता था, आज सांप बन करके इसको डसने के लिए इसकी कब्र में हाजिर है। इसलिए आपने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, अब इसको उसी हालत में, यानी सांप की मौजूदगी में इसको कब्र में डाल दिया जाए और मिट्टी बराबर कर दी जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कितनी ख़तरनाक बात है कि ज़कात की अदायगी न करना सांप के डसने का सबब है, अज़ाब कब्र का सबब है। इसलिए हमें चाहिए कि हम और आप ज़कात की अदायगी करने में हरगिज़ कोताही न करें, बल्कि जिनका हक़ है उनके हक़ को हम पहुँचाने की कोशिश करें। मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़कात की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।